یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اردو خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کیا من کی بات پروگرام میں کئی موضوعات پر اظہار خیال۔ کہا بھارت میں ہوا ہے غذائی اجناس کی پیداوار میں 100 ملین ٹن کا اضافہ۔ انتظامیہ جموں و کشمیر میں نابرابری کو ختم کرنے کی وعدہ بند، لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا۔ سرکار محنت کش طبقے کی فلاح و بہبود کی وعدہ بند، نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری۔ اور پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس کل سے ہوگا شروع۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ زرعی شعبے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کرتے ہوئے بھارت نے 357 ملین ٹن کی غذائی اجناس کی پیداوار کے ساتھ تاریخی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ 10 سال پہلے کے مقابلے بھارت کی غذائی اجناس کی پیداوار میں 100 ملین ٹن کا اضافہ ہوا ہے۔ ساتھیوں، کرشی چھیتر میں بھی دیش نے بڑی اپلبدھی حاصل کی۔ بھارت نے 357 ملین ٹن کے کھادیان اتپادن کے ساتھ ایک ایتہاسک ریکارڈ بنایا ہے۔ 357 ملین ٹن 10 سال پہلے کی تلنا میں بھارت کا کھادیان اتپادن 100 ملین ٹن اور بڑھ گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ 11 سال کے دوران ملک میں شہد کی پیداوار اب قریب 2 گنا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں شہد کی برآمدات میں 3 گنا سے بھی زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ شہد کے کاروبار اور صحت سے جڑے فوائد پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے جموں و کشمیر کے رامبن علاقے میں حاصل کیے جانے والے شہد کا خاص طور سے تذکرہ کیا۔ آج بھارت ہنی پروڈکشن میں نئے ریکارڈ بنا رہا۔ 11 سال پہلے دیش میں ہنی کا اتپادن 74,000 میٹرک ٹن تھا۔ اب یہ بڑھ کر 1.5 لاکھ میٹرک ٹن سے بھی زیادہ ہو۔ جموں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ون تلسی یعنی سلائی کے پھولوں سے یہاں کی مدھومکھیاں بے حد انوکھا شہد بناتی ہیں۔ یہ سفید رنگ کا شہد ہوتا ہے جسے رامبن سلائی ہنی کہا جاتا ہے۔ کچھ برسوں پہلے ہی رامبن سلائی ہنی کو GI ٹیگ ملا ہے۔ اس کے بعد اس شہد کی پہچان پورے دیش میں بن رہی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نے کھیلوں کے شعبے میں بھی اپنا پرچم لہرایا ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی بھارت کے دولت مشترکہ کھیلوں کے میزبان ملک ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں بھی بھارت کا پرچم لہرایا ہے۔ کچھ دن پہلے ہی بھارت کو کامن ویلتھ کھیلوں کی میزبانی کا بھی اعلان ہوا۔ یہ اپلبدھیاں دیش کی ہے، دیش واسیوں کی ہے، اور من کی بات دیش کے لوگوں کی ایسی اپلبدھیوں کو، لوگوں کے ساموہک پریاسوں کو جن سامانیہ کے سامنے لانے کا ایک بہترین منچ ہے۔ اسرو کے زیر اہتمام ڈرون کے منفرد مقابلے کا ذکر کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان نے مریخ سیارے جیسے حالات میں ڈرون اڑانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کا یہ جذبہ اور لگن وکست بھارت کی سب سے بڑی قوت ہے۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ 2019 کے بعد جموں و کشمیر UT کو ترقی کی بلندیوں تک لے جانے کے لیے نئے جوش اور ولولے کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ وہ کل ادھمپور میں ہائی رینج رورل ڈیولپمنٹ کی طرف سے 34 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے 341 رہائشی مکانات کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں متاثرین کے لیے UT بھر میں 1500 مکان تعمیر کیے جائیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ کسی بھی پریوار کے جیون میں ترقی کا آدھار اس کے سر پر چھت ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہ کیول سرکشا، استھرتا اور شانتی دیتی ہے، بلکہ یہ نئے لکش، نئی اچھائیں اور نئے اوسر کو بھی جنم دیتی ہے۔ اس اوسر پر آوشیک ہے کہ جموں کشمیر اور ادھمپور کے ناگرک یہ سنکلپ لیں کہ وکاس کی پرکریا کو ہم نرنتر آگے بڑھاتے رہیں گے۔ غریب ہوں، آدیواسی ہوں، کسان، مہیلا، یوا، ہر ورگ کو سویدھا ملے اور ان کو آگے بڑھنے کا اوسر ملے، ایسے انیک اپائے کیے گئے ہیں۔ اس دوران لیفٹننٹ گورنر نے رامبن میں 18 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے 189 گھروں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کہا کہ انتظامیہ جموں و کشمیر میں نابرابری اور تفاوتوں کو ختم کرنے، سماجی و اقتصادی انصاف کو یقینی بنانے، نیز جموں و کشمیر کا مستقبل محفوظ بنانے کی وعدہ بند ہے۔ ان مہینوں میں پرکرتی کے رودر روپ کو اگر دیکھا جائے تو رامبن کے الگ الگ حصوں کے انیکوں گھر پربھاوت ہوئے۔ رامبن میں ضلع پرشاسن نے جو 189 گھروں کو چنہت کیا ہے، ان کے نرمان کی پریوجنا کا شیلانیاس آپ سب کے سمکھ ہوا ہے۔ پرتیک گھر کے نرمان پر لگ بھگ 9,82,000 روپے کا خرچ آنے والا ہے۔ ایک پاردرشی شاسن ویوستھا یہ سنشچت کرتی ہے کہ نواسیوں کا جیون سدھرے، ان کی مصیبتیں دور ہوں اور سماج کے آخری پکتی میں کھڑے ویکتی تک جن سویدھائیں پہنچیں۔
नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर का मेहनत कश तबका यूटी की इक़्तिसादियात में एक अहम रोल अदा करता है। जम्मू में कामगारों की बाख्तियारी के मौजू पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मेहनत कश तबके के वक़ार और उनके वसीले रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की वादाबंद है। मेहनत और रोज़गार महकमे के एहतमाम से मुनक़िदा इस तकरीब पर लेबर कमिश्नर चरणदीप सिंह और दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना कल यानी 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में लोगों से मुलाकात के लिए हाजिर रहेंगे। वज़ीर मौसूफ इस दौरान लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का जायजा लेंगे। ख्वाहिशमंद लोगों से कहा गया है कि वो अपने मुतालबात मुकर्रर अयाम के दौरान वज़ीर मौसूफ की नोटिस में लाने के लिए दफ्तरी अवकात में सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर आ सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने कहा है कि कुछ मुश्किल हालात के बावजूद जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में तसल्ली बख्श तरक्की दर्ज की गई है। उन्होंने जम्मू में यूटी सतह की बैंकर्स कमेटी की 17वीं मीटिंग की सदारत करते हुए बैंकों और मालियाती इदारों की क्रेडिट फराहमी और बैंकिंग खिदमात की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने बैंक हुकाम से तलकीन की कि वो तरजीही शोबों में कर्जों की फराहमी को बेहतर बनाए। इससे पहले यूटी LBC के कन्वीनर और जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ चटर्जी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बैंकिंग सेक्टर के तरक्याती किरदार पर एतमाद का इजहार किया। वादी कश्मीर में सर्दियों के दौरान लोगों को कई तरह के तिब्बी मसाइल का सामना रहता है। बुजुर्ग अफराद को अमूमन छाती के इन्फेक्शन की शिकायत रहती है। इस सूरत हाल से बचने और एहतियात के बारे में जब हमने मारूफ मुआलिज और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा, सर्दी बढ़ने से बुजुर्गों में जुकाम, खांसी और चेस्ट इन्फेक्शंस भी बढ़ रहे हैं। हल्की सर्दी, फीवर या थोड़ी सी खांसी हो तो गर्म पानी, अदरक और शहद का कहवा और स्टीम लेना फायदा देता है। रोज थोड़ा सा इंडोर वॉक करें, ठंडी हवा और धुएं से दूर रहें। 2 दिन से ज्यादा बुखार, सांस का फूलना, सीने का दर्द और पीली बलगम हो तो उसको नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर से मशवरा करें। कोई एंटीबायोटिक खुद ब खुद ना खाएं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू और कश्मीर भी तिब्बी निगहदाश्त शोबे में बतदरीज आगे बढ़ रहा है और कई एक तिब्बी पहलुओं में इसे एक बेहतर मकाम हासिल है। इस ज़मन में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सऊरा के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो भी इंडिसीज होती है जैसे मैटरनल मॉर्टलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट और दीगर डॉक्टर पेशेंट रेशो, पेशेंट नर्स रेशो, डेंसिटी ऑफ कॉलेजेस, डेंसिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, अगर वो कुल मिला के हम देखेंगे इसमें जम्मू कश्मीर पहले कुछ नंबर्स पे आ सकता है और अगर हम कुल मिला के ये नंबर 1 पे है। मुल्क को इक़्तिसादी तौर मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए वज़ा किए गए माली नज़्म ज़ब्त पर अमल दरामद लाजमी है। इस ताल्लुक से मारूफ माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। जब भी यूनाइटेड नेशंस जैसी इदारे या वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे इदारे कोई भी प्रोग्राम लेके आते हैं, वो इदारों में जो लोग बैठे हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज वो एंड यूज नहीं हो पाता है। जिस भी नेशन के इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव नहीं है और करप्ट है, जहाँ पे लोगों को एक्सेस जुडिशरी नहीं मिलता है, राइट्स नहीं मिलते हैं, उनका बाकी सारी चीजें जो है वो एक्सट्रैक्टिव है, वो नेशंस जल्दी फेल होते हैं। और हमने देखा ये बहुत बड़ी रीजन है कि यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज एडवांस्ड इसलिए है और इतनी तरक्की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लॉज, वहाँ पे इंक्लूसिविटी का बहुत बहुत ध्यान दिया जाता है। देही तरक्की और पंचायती राज महकमे के डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन के एहतमाम से जम्मू और कश्मीर में हमारा शौचालय हमारा भविष्य के मौजू पर 22 रोज़ा मुहिम इन दिनों जारी है। मुहिम से जुड़े डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटेशन जम्मू कश्मीर के कुछ एहलकारों ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मैं विनोद कुमार, नोडल ऑफिसर IMIS स्वच्छ भारत मिशन जम्मू कश्मीर रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट सभी को सिर्फ अपने घर ही नहीं बल्कि आस पड़ोस को भी पूर्णतः स्वच्छ रखने के लिए पुरजोर प्रयास करना चाहिए और दूसरों में जागरूकता भी लानी चाहिए ताकि सभी को 100% स्वच्छ वातावरण मिल सके जो मानवता के लिए बहुमूल्य उपलब्धि साबित होगा। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चित्रगाम, हमारा शौचालय हमारा भविष्य, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक संकल्प है एक सच, स्वस्थ और सुरक्षित गांव का। आइए मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं।
सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में तमाम सियासी पार्टियों की मीटिंग बुलाई ताकि कल यानी 1 दिसंबर से शुरू होने वाला मौसम सरमा का पार्लियामेंट इजलास बगैर किसी ताअत्तुल के चल सके। मीटिंग की सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में राज्यसभा में ऐवान के लीडर JP नड्डा, पार्लियामानी अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू और वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर L मुरुगन के अलावा दीगर कई मेंबरान पार्लियामेंट और सियासी जमातों के लीडरों ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद पार्लियामानी अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि मीटिंग मुस्बत माहौल में मुनाकिद हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों से अपील की कि वो मौसम सरमा इजलास के दौरान दोनों ऐवानों की कार्रवाई को चलाने के लिए अपना ताउन दें। याद रहे मौसम सरमा का इजलास कल 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी से वाबस्ता लोकसभा मेंबरान से तलकीन की है कि वो कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के दौरान जम्मू और कश्मीर के साथ साथ मुल्क के लोगों खासतौर पर अक़लियतों को दरपेश मसाइल का इजाला करने के लिए आवाज़ उठाएं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट के इसी इजलास के दौरान जम्मू और कश्मीर की रियासी दर्जे की बहाली मुमकिन हो पाएगी। जम्मू और कश्मीर सरकार लोगों को हर सतह पर राहत पहुंचाने के साथ साथ उन्हें लाजमी खिदमत मैसर रखने की वादाबंद है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख़वातीन विंग की स्टेट सदर शमीमा फिरदौस ने पार्टी हेडक्वार्टर पर ख़वातीन विंग के सूबाई सतह के इजलास में किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और MLA बानीहाल सज्जाद शाही ने अपने हलके के 3 अहम सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे मरहले के तहत मंजूर शुदा इन सड़क प्रोजेक्टों पर 64 करोड़ 74 लाख रुपए की रकम खर्च की जा चुकी है। इन सड़कों की तामीर से इलाके के लोगों की देरी ना मांग पूरी हुई है, जो कई दहाइयों से सड़क राब्ता न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना कर चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के एक हिस्से के तौर पर बीजेपी लीडर और साबिक MLC एडवोकेट विबोध गुप्ता ने आज घड़ीगढ़ बहूर कैंप इलाके में घर घर जाकर अवामी राब्ता मुहिम चलाई। उन्होंने वहां अवाम को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी और उन्हें वोकल फॉर लोकल अपनाने की ताकीद की। इस दौरान पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये जमात अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाती है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू और कश्मीर के सदर GM शाही ने मौजूदा सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हुई है। इन बातों का इजहार उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब के दौरान किया। इस मौके पर कई नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स के एहतमाम से जम्मू में नेशनल यूथ फेस्टिवल के तहत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के UT सतह के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए महकमे की डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम नौजवानों की सलाहियत साजी में मौसर रोल अदा करते हैं। इन मुकाबलों में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले कुछ शुरका ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मेरा नाम भूमिका ठाकुर है और हम यूथ सर्विसेज स्पोर्ट डिपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमने इसमें पार्टिसिपेट किया और हम ISR रजौरी से हैं और हमने फर्स्ट प्राइज गेन किया है फोक डांस में और हम अब दिल्ली परफॉर्म करने जा रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आई एम कोनिसा शेख फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रजौरी। वी गॉट फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ फेस्टिवल। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड सून वी विल गो टू दिल्ली एंड परफॉर्म देयर and this was organized by Youth Service Sport Department. क्राइम ब्रांच कश्मीर ने रियाज अहमद डार नामी एक पुलिस हेड कांस्टेबल के खिलाफ स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट पुलवामा की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। रियाज अहमद डार पर नौजवानों को नौकरी दिलाने का लालच देकर उनसे धोखाधड़ी से हुकूमत ऐंठने और अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। मानशात के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला जिले के सोपोर इलाके में वसीम अहमद भट्ट नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। इधर बडगाम जिले के चार शरीफ इलाके में खुर्शीद अहमद गनाई और महराज अहमद शाह नामी 2 ड्रग स्मगलरों की 45 लाख रुपए मालियत की जायदाद अटैच की गई है। दरियासर पुलिस ने शोपियां में गैर कानूनी कानकनी में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 JCB जब्त किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बारामूला पुलिस के एहतमाम से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल उड़ूसा उड़ी में मजमून नवीसी के एक मुकाबले का इनेकाद हुआ। इस मुकाबले में कई तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। जम्मू और कश्मीर में GST इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इन इस्लाहात से मजमूई तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद चीज़ों और हयात बख्श अद्वियात की कीमतों में भी कमी वाक़या हुई है। इसके अलावा सियाहती सेक्टर में भी GST की शरहें कम हुई हैं। अब जम्मू कश्मीर की सियाहत बनी मजीद आसान। होटल में क़याम पर लगेगा महज 5% GST। सफ़र के खर्च में कमी बनाए लंबे क़याम को यकीनी। GST में कमी से होगा रोजगार के मौक़ों में इजाफा। कम कीमतें, ज्यादा सियाहत, मजबूत मईशत। GST में कमी, खुशहाल जम्मू कश्मीर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुलिस की पेशेवराना सलाहियतों में मज़ीद निखार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि आम लोगों खासकर नौजवानों के अज़हान में पुलिस की गलत शबीह को दुरुस्त किया जा सके। रायपुर छत्तीसगढ़ में DGPs और IGPs की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने शहरी और सियाती पुलिसिंग में भी जदीदियत लाने की ताकीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने नए फौजदारी क़वानीन की मौसर अमलावरी पर जोर दिया। कल एड्स बीमारी मुखालिफ आलमी दिन है। इस दिन की मुनासिबत से कल मुल्क भर में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। कौमी सतह का प्रोग्राम सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा की क़यादत में मुनक्किद होगा। आखिर पर मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 12.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 7:18 और गुरूब आफ्ताब शाम 5:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन ख़त्म होता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।